Now the next topic that we are going to discuss is Six Sigma. Okay, this is the topic of Unit 4 of Quality Toolkit for Managers. The subject code is KMB OM03. So these are some of the references that you may refer for further study about the topic. Okay, first is your textbook, second and third are some reference book, and fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth are some good blogs that you may refer for further study about the topic, that is Six Sigma. Okay. So now the first topic is what is Six Sigma. So Six Sigma is a quality program that when all is said and done improves your customer experience, lowers your cost, and builds better leaders. That is the statement by Jack Welch. Okay. सो बेसिकली सिक्स सिग्मा क्या है, क्वालिटी प्रोग्राम है जिसमें कि कह सकते हैं आप कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं। तो कस्टमर के हिसाब से जो भी डिफेक्ट है दैट यू विल मींस कंसीडर इन दिस प्रोसेस। ओके, और इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे, आप मीन डिसाइड करेंगे और उसके अलोंग आप जो भी डेविएशंस हैं उनको आप कंट्रोल करेंगे और किस लेवल तक ले जाएंगे, दैट इज ऑफ सिक्स सिग्मा लेवल। ओके, so Six Sigma is a set of management tools and techniques designed to improve business by reducing and likelihood of error। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, और उनका जो इम्पैक्ट है कह सकते हैं लाइकलीहुड, ठीक है, उन डिफेक्ट्स का ऑकरेंस उसको भी आपको लिमिट करना है किस लेवल तक। जैसा मैं आपको पहले भी बताया था कि 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है ना, 10 लाख में से ओनली 3.4 डिफेक्ट। 3.4 मीन्स जो कि एक्सीडेंटल ऑकर कर गए, ठीक है। वैसे मतलब जो आपकी प्रोसेसेस के थ्रू उनका ऐसा कोई ऑकरेंस का रीजन नहीं था, ठीक है। 3.4, अब इसमें बेसिकली करते क्या है, आप जो असाइनेबल कॉजेज हैं उनको आप कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि असाइनेबल कॉजेज आर कंट्रोलेबल कॉजेज। ओके, एंड नेचुरल कॉजेज आर अनकंट्रोलेबल। तो नेचुरल को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो असाइनेबल कॉजेज हैं you will draft a strategy to mitigate the impact of those assignable causes. Okay, so next it is a data driven approach that uses a statistical methodology for eliminating defects. Okay, and it is based on the Greek symbol sigma, okay, and a statistical term for measuring process deviation from the process mean or target. And Six Sigma comes from the bell curve used in statistics, where one sigma symbolizes a single standard deviation from the mean. ठीक है, तो Six Sigma basically it is a Greek symbol that is using here. Okay, and if the process has Six Sigma 3 above and 3 below the mean, the defect rate is classified as extremely low. ठीक है, next is the graph of the normal distribution below underscores the statistical assumptions of the Six Sigma model. And the higher the standard deviation, the higher is the spread of the value encountered. So the processes where the mean is minimum Six Sigma away from the closest specification limit are aimed at Six Sigma। मीन Six Sigma में जो आपका टारगेट रहता है वो क्या होता है कि मीन के अलोंग, है ना, मीन जो भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर ऑप्टिमाइज करना चाहूँ कि आपकी क्लास में आप 9 बजे आते हो, है ना, तो 9 AM के लिए अगर मैंने मीन डिसाइड किया कि 9:05 और 8:55, है ना, तो इसको मैंने और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया कि 9:01 एंड 8:59, तो दैट इज मींस क्लोजेस्ट टू मीन, तो दैट इज बेसिकली Six Sigma। ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली 9 पर ही आप आ रहे हैं, है ना, 9 पर ही आप एंटर कर रहे हैं, 9 पर ही आप लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इस प्रोसेस को क्या किया, ऑप्टिमाइज किया। इस प्रोसेस में जो डिफेक्ट या वेरिएशन देखने को मिल रहा था उसको क्या किया मैंने, ऑप्टिमाइज किया। ओके, सो द प्रोसेसेस where the mean is minimum Six Sigma away from the closest specification limit are aimed at Six Sigma. And Six Sigma is a quality control methodology developed in 1986 by Motorola. तो सबसे पहले इसे मोटोरोला ने इनकॉर्पोरेट किया था इन 1986, और उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड रिनोन्ड फिलोसफी हो गई और बहुत सारी कंपनीज ने इसे अडॉप्ट किया इन फ्यूचर। ओके, और आज भी इसे अडॉप्ट कर रही हैं कंपनीज। So it was originally developed as a management a method to work faster with fewer mistakes.
ठीक है, मीन्स इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच। अपने जो डिफेक्ट्स के रीजंस थे उनको आपने क्या किया, ऑप्टिमाइज किया, उन रीजंस को आपने मिटिगेट किया। ठीक है, जो उन असाइनेबल कॉजेस को आपने मिटिगेट किया बाय प्लानिंग इट, बाय प्रोएक्टिवली वर्क ऑन इट। ओके, so it is originally developed as a management a method to work faster with fewer mistakes. Okay, and it has now become an industry standards with certifications offered to the practitioners. अब इसमें क्या है बेसिकली कि वेरियस सर्टिफिकेशंस लेवल्स आर देयर। ठीक है, जैसे ग्रीन बेल्ट है, फिर ब्लैक बेल्ट है, मास्टर ब्लैक बेल्ट है, जिसे चैंपियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें सर्टिफिकेशन लेवल्स हैं जो कि आपको अटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, जब आप सिक्स सिग्मा की फील्ड में अपना करियर बनाने की सोचते हैं तो, ठीक है, या अपने आप को सिक्स सिग्मा में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो यू नीड टू go through these certifications. Okay, so it has now become an industry standards with certification offered to the practitioners. ठीक है, ASQ है जो कि आपको सर्टिफिकेशन कराता है, और बहुत सारी सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं जो कि आपको सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेशन देती हैं। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज so managing up the Six Sigma scale, managing up the Sigma scale basically। तो सिग्मा में देखिए, वन सिग्मा लेवल अगर आप बोलते हैं कि मैंने वन सिग्मा अडॉप्ट किया हुआ है, तो मीन्स जो मैं प्रोडक्ट में डिफेक्ट देखूंगा तो दैट इज 30.9% गुड, है ना, और डिफेक्ट्स कितने होंगे, 69.1%। मीन्स अगर 10 लाख में से डिफेक्ट देखूं, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी DPMO 10 लाख में से अगर मैं देखूं तो देयर आर डिफेक्ट्स ऑफ अराउंड 6,91,462। जनरली इसमें किसी भी कंपनी की कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं होती है कि इतने ज्यादा डिफेक्ट निकले। ठीक है, तो वन सिग्मा लेवल पर कंपनीज जनरली देखने को नहीं मिलती हैं। फिर सेकंड इज टू सिग्मा। व्हाट इज टू सिग्मा, 69.1%। ठीक है, गुड, एंड 30.9% बैड। इसका क्या मतलब है कि 10 लाख में से 3,08,538 डिफेक्ट्स। ओके, तो ये इसमें भी सेकंड सिग्मा लेवल पर भी कंपनीज बहुत ही रेयरली मिलती हैं जो कि इस सेगमेंट में लाई करें। नेक्स्ट इज थ्री सिग्मा। थ्री सिग्मा में क्या होता है, 93.3% गुड एंड 6.7% डिफेक्ट। ठीक है, तो 66,807 आउट ऑफ 10 लाख। तो इसमें कुछ कंपनीज हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया ना कि नेल्स बना रहे हैं या नीडल्स बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें डिफेक्ट रह गया तो उसको दोबारा से मेल्ट किया। मीन्स जहाँ पर क्रिटिकलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन जगहों पर ये हो सकता है। ठीक है, या बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग या कुछ इस तरीके की कंपनीज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन नहीं है, वो इस फील्ड में मतलब इस लेवल पर लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर सिग्मा लेवल। ठीक है, फोर सिग्मा में क्या होता है, 99.38 मीन्स जो डिफेक्ट लेवल है वो 0.62 मीन्स 6210। लेकिन मैंने काफी सारी कंपनीज को देखा है कि जो कहीं ना कहीं 3 या 4 सिग्मा लेवल पर लाई करती हैं, और उनको अपनी प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करते हुए, उनको अपनी प्रोसेसेस को फर्दर और बेटर करते हुए उन्हें 6 सिग्मा लेवल पर ले जाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस नीड को रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए एक टीम बनाना, उनको ट्रेन करना, और फर्दर उस जो सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव है उनको इनकॉर्पोरेट करना, दैट यू नीड टू मींस डेवलप इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दिस इज so 4 sigma, this is 4 sigma level. Next is 5 sigma. 5 sigma is 99.977% good and 0.023% bad. Okay, means 233 defects per million, means out of 10 lakh you will get only 233। तो बहुत सारी कंपनीज है जो कि 3 सिग्मा या 4 सिग्मा लेवल पर लाई करती हैं, वो अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हुए 5 सिग्मा लेवल पर ले जाती हैं। फिर फर्दर और अपनी प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करते हुए दे विल मूव टुवर्ड्स द 6 सिग्मा लेवल। एंड व्हाट इज 6 सिग्मा लेवल, means 99.9997% good and 0.00034% bad, means only 3.4 defect per million opportunity है ना। एक 10 लाख में से you will get only 3.4 defects, so that is just because of those natural causes, means uncontrollable causes, not just due to the assignable causes. So these are the various sigma levels that you need to
focus while dealing with this Six Sigma. Okay, so if you have any doubt or query regarding this, you may ask.